Hello and Assalamu alaikum. This is Nida, Naughty Urdu trainer at CECA. Guys, today I want to mention all the services which are provided at CECA. You should really consider them. CECA really wants to provide the free services considering this COVID situation. Like most of the students and other people are not able to afford these services with money. So you should definitely can get these services at CECA at free of cost. These services are free student visa extension. Like if your student visa is going to expire, so you can apply through CECA with free of cost. Like आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर सकते हैं एक्सटेंशन के लिए अगर आपका स्टूडेंट वीजा एक्सपायर हो रहा है. इवन इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर 485, you can also come at CECA. It's again free service. Cheapest option for overseas student health cover or visitor health cover, and they are also providing the free IELTS or PTE if you are NAATI trainer, and they are also providing the free NAATI classes if you are PTE coach. So these are the services for the tutors who are providing services for IELTS or PTE or even for NAATI classes. And the CEC also assess the Canadian migration. If you want to move to Canada, you can come at CEC. They will assess your profile. Are you eligible for that and or not? Or if you want to go to Canada, what are the requirements for you according to your profile? And even the college admission, CECA will help you to get the best career option and with best studies which will lead you towards PR. And obviously there are free migration consultation. You should really consult with CECA before going to any option. अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन किसी भी कंसल्टेंट से आपको मिलता है तो एक दफ़ा CEC से जरूर कंसल्ट कर लें, उसको डबल चेक कर लें. मे बी यू विल गेट सम more good advices, so better, and this is free of cost, so obviously you should consider these services. Okay guys, so I just mentioned all the free services you can get at CECA along with these NAATI classes. Now we'll move towards NAATI again. First of all, I want to repeat the pattern for all the students who are listening to this lecture first time so that they come to know how this test happens and what are the things included in it. So simply there will be two dialogues in this test. दो डायलॉग होंगे अराउंड 300 to 350 वर्ड्स. कोई बहुत ज़्यादा लंबा लेंथी नहीं हो सकता, ठीक है. इतने ही वर्ड्स लिमिट है एक डायलॉग की, 300 to 350 वर्ड्स. और मार्क्स है इनके 45 ईच. Passing marks are 29 out of 45 in each dialogue, but the overall passing marks are 63, not 58, because if you will get 29 in each dialogue, it will be 58, and you will still not able to pass the test. You have to get overall 63 marks. So always keep in mind, get the marks in 60s, not in 30s, not in 20s. So if you will get 33 marks in each dialogue, so you will be able to get the score overall passing marks. So there are 4 essential criteria for marking system. I already mentioned so many times in my lectures that it's a deductive marking system. डिडक्टिव मार्किंग सिस्टम ये होता है कि जब आपका डायलॉग सुनने लगेंगे तो आपके फुल मार्क्स होंगे 45. जैसे जैसे आपका एक एक सेगमेंट सुनते जाएंगे और उसमें से जो जो मिस्टेक्स होती जाएंगी उसके अकॉर्डिंग वो नेगेटिव मार्किंग करते जाएंगे. सो दिस इज डिडक्टिव मार्किंग सिस्टम. डायलॉग में आपने इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट करना है, इंटरप्रेट करना है. इंटरप्रेट और ट्रांसलेट में ये फर्क है कि मतलब आपने इंटरप्रिटेशन में मीनिंग कन्वे करना है. मतलब जरूरी नहीं है कि आपने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करनी है. इंटरप्रिटेशन मीन्स कि आपने मीनिंग कन्वे करना है, ठीक है. सो मार्किंग क्राइटेरिया की बात कर रही थी मैं. 4 मेजर मार्किंग क्राइटेरियाज है. एक तो एक्यूरेसी, करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आपने इंग्लिश में सुना है उसी को उर्दू में इंटरप्रेट करना है. उर्दू को सेम एक्यूरेटली आपने इंग्लिश में करना है, ठीक है. सो एक्यूरेसी. सेकंड मेजर मिस्टेक जो कि बहुत सारे ज़्यादा स्टूडेंट्स कर जाते हैं, डिस्टॉर्शन.
अपनी तरफ से वो सही सुनते हैं, सही उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन समटाइम्स दे doesn't match with the what the actual information is. Okay, so this is called mispresentation of information. Distortion means कि आपने information को mispresent कर दिया है, क्योंकि हो सकता है sometimes आपने they are saying that something is illegal in Australia and you have listened legal. So legal और illegal को अगर आप मिक्स कर देंगे, राइट और लेफ्ट को मिक्स कर देंगे, और भी इसी तरह का कोई भी चीज आपको मतलब गलत इंफॉर्मेशन कन्वे करेंगे तो वो डिस्टॉर्शन के अंडर ही आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ और मैं कहती हूँ मेरे राइट नी में पेन हो रही है, और आप उसको इंटरप्रेट करते हुए लेफ्ट बायां बोल देंगे। ठीक है, तो दैट इज डिस्टॉर्शन। ओके, अदर टू मेजर मिस्टेक्स आर एडिशन और ओमिशन। एडिशन मीन्स कि आपने अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है, और ओमिशन मीन्स कि आपने मेजर इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है। ठीक है, इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर एक सेगमेंट में स्पीकर ने 2-3 बातें करी हैं और आप उसमें से एक सेंटेंस खुद से ऐड कर देते हैं, वर्ड्स की बात नहीं करी मैं, सेंटेंसेस की बात कर रही हूँ। अगर आप एक सेंटेंस ही एक खुद से ऐड कर देते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, उसके बगैर भी मीनिंग कन्वे हो रहा था, तो वो एडिशन में आता है। ठीक है, सेम इज इट एज इट इज ओमिशन है। ओमिशन मीन्स कि आप स्पीकर ने 3 बातें की हैं एक सेगमेंट में और आपने 2 को इंटरप्रेट कर दिया और तीसरे को बिल्कुल छोड़ दिया। ठीक है, दैट इज ओमिशन। ओमिशन में छोटी छोटी बातों का भी ख्याल करना पड़ता है। समटाइम्स ब्राय मेहरबानी, माफ कीजिएगा, इस तरह के वर्ड्स को कभी भी ओमिट नहीं करना। और बाकी अगर आपको लगे कि आपने कोई इंफॉर्मेशन मिस कर दी है, तो हर डायलॉग में आपके पास एक चांस होता है कि आप अपने इन्विजिलेटर को कह सकते हैं कि ओके, आई वांट टू टेक अ रिपीट फॉर दिस सेगमेंट। आप वो सेगमेंट दोबारा सुन सकते हैं और आप अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज हाउ आप अपने सारे मेजर मिस्टेक्स को ओवरकम कर सकते हैं। लाइक डिस्टॉर्शन का कोई इसमें इशू नहीं रहेगा। अगर आपकी इंफॉर्मेशन मिस हो गई है, यू कैन कंप्लीट योर नोट्स। और एडिशन प्लीज आप खुद ही अवॉइड करें, बिकॉज समटाइम्स इंटरप्रेट करते हुए हम सोचते हैं ओके इसको भी ऐड कर दें तो हमारे यहाँ अच्छे से मीनिंग कन्वे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, सो दिस इज अ लाइफ लाइन फॉर यू गाइस कि आप एक रिपीट ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगेन, जैसे बहुत ज़्यादा CS सर्विसेज अपनी बहुत ज़्यादा फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इसी तरह नाटी के टेस्ट में भी आपके लिए एक फ्री सर्विस है कि आप एक रिपीट फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। ओके, सो इन ईच डायलॉग आप एक रिपीट विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसके बाद फिर से जरूरत पड़ती है कि आपने एक रिपीट फिर से लेना है, आपको लगता है कि इस सेगमेंट में मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है, मुझे समझ नहीं आई, मैं नोट्स कंप्लीट नहीं कर सका या सकी, तो यू कैन टेक रिपीट अगेन, बट उसका -1 होगा। ठीक है, -1। सो बेटर कि आपकी मेजर इन्फॉर्मेशन अगर मिस हो गई है, सो यू कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी अगेन। -1 इज बेटर देन -6, 7, 8। ओके, सो ऑलवेज कंसिडर, अगर आपने कहीं अपनी इंफॉर्मेशन मिस कर दी है, यू शुड गो फॉर रिपीट। -1 है उसका अगर आप एक से ज्यादा बार ले रहे हैं। ठीक है, सेकेंड टाइम ले रहे हैं, ऑब्वियसली -1 है। फिर अगर आपको फिर जरूरत पड़ती है, फिर आप ले सकते हैं, वो आपको ये नहीं कहेंगे अब आप ये अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर सकते, आप फिर रिपीट ले सकते हैं, लेकिन अगेन -1 होता जाएगा। ठीक है, ओके, सो I always encourage my students to go for -1, to go for repeat। अपने पास से इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं है, -1 ले ले, बजाय इसके कि आप मेजर मिस्टेक्स की तरफ जाएं कि वो एकदम से आपके -7, -8 मार्क्स हो जाए। ठीक है, ओके, वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑब्वियसली ये इंटरप्रिटेशन टेस्ट है, इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम हर लेक्चर में हर क्लास में उसकी तैयारी करेंगे, उसको जितना पॉसिबल हो सकेगा, जितने वर्ड्स, हर टॉपिक से रिलेटेड वोकैबुलरी अवेलेबल है। डायलॉग्स के लिए अलग से वोकैबुलरी है जो कॉमनली सब डायलॉग्स में यूज होते हैं वर्ड्स, उसके लिए। सो वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन व्हाट हैपन, लाइक अगर आप एग्जाम में कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जो आपने वोकैबुलरी में भी नहीं सुना और आपको लगता है ओके,
आपको लगता है कि आपने वोकेबलरी में वो वर्ड नहीं पढ़ा या ऑन दैट मोमेंट वो वर्ड आपके दिमाग में नहीं आ रहा, तो द लास्ट ऑप्शन, आप उसी वर्ड को एज इट इज इंग्लिश में यूज करें और अपनी फ्लुएंसी को बिल्कुल भी खराब नहीं होने दें, ठीक है। सो फ्लुएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वोकेबलरी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, लेकिन फ्लुएंसी आपने अपनी बिल्कुल खराब नहीं करनी सिर्फ वोकेबलरी की वजह से कि वो वर्ड आप उस टाइम आपको सोचना ना पड़े, ठीक है, क्योंकि जब आप सोचेंगे तभी आप पॉज लेंगे, ठीक है, और पॉजेस की वजह से आपकी फ्लुएंसी इफेक्ट होगी, जिसकी वजह से आपके marks पे असर पड़ेगा. So these are the things related to the pattern for the exam. The topics जिन पे डायलॉग्स आते हैं वो मैं एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ. ये टॉपिक्स है बिजनेस, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट, व्हाटएवर एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल, हेल्थ, हाउसिंग, इमिग्रेशन, लीगल, सोशल सर्विसेज, इंश्योरेंस. Yes, so these are the topics जिनसे related dialogues आते हैं. So we have discussed so many topics in our previous lectures. आज के लिए जो topic मैंने choose किया है to discuss in the class, that is insurance. ठीक है, आज हम इंश्योरेंस पे बात करेंगे, इंश्योरेंस की वोकेबलरी को डिस्कस करेंगे. इंश्योरेंस का उर्दू में मतलब होता है बीमा, ठीक है, बीमा करवाना आप अपनी, जैसे और हेल्थ इंश्योरेंस होती है हमारी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, सेहत का बीमा. Okay, guys, as I mentioned earlier, you should consider the free services provided at CECA. There are lot of services जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट CEC पे अवेल कर सकते हैं, ठीक है. अगर आपको कोई भी माइग्रेशन कंसल्टेशन चाहिए फॉर ऑस्ट्रेलिया, फॉर कनाडा, यू शुड कम एट CECA. बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स हमारे यहाँ पे मौजूद हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं. आपका अगर वीजा एक्सपायर हो रहा है, यू शुड कम एट CECA. फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फ्री वीजा एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी. चीपेस्ट प्रोफेशनल ईयर सर्विसेज, प्रोफेशनल ईयर ऑप्शंस, चीपेस्ट स्टूडेंट हेल्थ कवर्स एंड विजिटर हेल्थ कवर्स, फ्री TR 485 visa, free PT and IELTS for NATI tutors, and free NATI classes for PTE tutors. So this is a huge opportunity for the tutors as well. Okay, so I already mentioned the Canadian immigration. If you want, you can get free consultation, you can get free assessment for your profile. College में admission चाहिए, free consultation regarding that, and free migration consultation. So you should come at CECA and consider. और इसके अलावा भी कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर इमिग्रेशन, वीजा, कुछ भी हो, जरूर आए CEC पे और अपना प्रॉब्लम डिस्कस करें. ओके, so let's move towards the dialogue. Dialogue I already mentioned. आज हमने जो करना है वो हमने करना है इंश्योरेंस से रिलेटेड. इंश्योरेंस मीन्स बीमा. Okay guys, let's start the dialogue first, and after that हम उसकी vocabulary भी डिस्कस कर देंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई बहुत लंबी चौड़ी vocabulary नहीं है. जो भी है हम डायलॉग के साथ साथ और फिर इन द एंड रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द डायलॉग. This dialogue takes place between a customer and an insurance provider over the phone. The low-tech customer has met with an accident and is asking for the procedure for making a claim. The dialogue begins now. It takes place between a customer and an insurance provider over. So ये एक कस्टमर और इंश्योरेंस प्रोवाइडर के दरमियान ओवर द आई डोंट नो ओवर द फोन है कि वैसे. लेट्स लिसन कि हमें पता चलेगा कि कैसे कन्वर्सेशन हो रही है, ठीक है. सो एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर है और एक कस्टमर है. कस्टमर ग्राहक होता है और इंश्योरेंस प्रोवाइडर, इंश्योरेंस बीमा, एंड इंश्योरेंस प्रोवाइडर बीमा फराहम करने वाला, बीमा फराहम करने वाली कंपनी,
बीमा देने वाली कंपनी या बीमा दहिंदगान। बीमा दहिंदगान इज द जो परफेक्ट वर्ड है इंश्योरेंस प्रोवाइडर के लिए, दैट इज बीमा दहिंदगान। लेकिन इफ यू वांट टू यूज इट इन सिंपल उर्दू तो आप कह सकते हैं कि बीमा फराहम करने वाली कंपनी या इदारा या बीमा फराहम करने वाला। ओके, लेट्स लिसन। The low-tech customer has met with an accident and is asking for the procedure for making a claim. सो अब कस्टमर का एक एक्सीडेंट हो गया है और वो प्रोसीजर मालूम करना चाह रहा है कि वो कैसे क्लेम करे अपनी इंश्योरेंस। ठीक है, क्लेम का मीनिंग होता है दावा करना, कि अपने इंश्योरेंस के लिए वो कैसे दावा करे कि भाई उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाए। The dialogue begins now. डायलॉग बिगिंस नाउ, पहला सेगमेंट स्टार्ट होगा। जैसे ही सेगमेंट खत्म होगा उसके बाद एक 2 to 3 सेकंड्स की एक बीप होगी, जिसके मतलब है कि आपके पास इतना टाइम है आप अपने नोट्स कंप्लीट करें। उसके बाद भी आप अपने नोट्स कंप्लीट करके आराम से 2-3 सेकंड्स लें एंड देन स्टार्ट इंटरप्रिटेशन। और वो बहुत ही लाउड क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही होती है एंड यू शुड बी वेरी केयरफुल कि आपकी आवाज़ इतनी लाउड है कि वो रिकॉर्डिंग में बिल्कुल सही से रिकॉर्ड हो रही है। ओके, Good morning. This is Lucy speaking from Budget Insurance. How may I help you today? सुबह बखैर, मैं बजट इंश्योरेंस से लूसी बात कर रही हूँ। मैं आज आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? ठीक है, 2-3 सेकंड लें एंड देन गिव योर आंसर। इसमें कोई भी वो ऐसा वर्ड नहीं है, कोई भी वोकैबुलरी वर्ड नहीं है। बजट इंश्योरेंस है, कंपनी का नाम है, आई ऑलरेडी मेंशन। ऑर्गेनाइजेशंस के नेम आ जाए, डिपार्टमेंट्स के नेम आ जाए, या कोई ऐसा ऑफिशियल किसी का रैंक आ जाए, तो यू डोंट नीड टू कन्वर्ट इट इनटू उर्दू, आप उसको एज इट इज यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो आई रिपीट इट अगेन। सुबह बखैर, बजट इंश्योरेंस से लूसी बात कर रही हूँ। मैं आज आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। मैं आपका एक ग्राहक हूँ और मेरे साथ कल एक हादसा पेश आया था। मैं इसके लिए कैसे दावा दायर कर सकता हूँ? I'm your customer and I had an accident yesterday. How can I make a claim for it? Okay, I already mentioned दावे का मतलब होता है, क्लेम का मतलब होता है दावा। ठीक है, अब उसने उर्दू में वर्ड यूज किया है दावा दायर करना। ठीक है, मतलब दायर करना, एप्लीकेशन देना, लॉन्च करना, क्लेम करना। ठीक है, सो हाउ कैन आई मेक अ क्लेम फॉर इट? क्योंकि इंश्योरेंस के लिए हम मोस्टली क्लेम करते हैं, so we will use that word. How can I make a claim for it or how can I launch a claim for it? Both are correct. ठीक है, सो मेन जो मेरा मकसद है इसको बताने का कि जैसे ही आपकी बीप खत्म हो, आपने 2-3 सेकंड्स लेके अपना आंसर एज जैसे कि एक कोई प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग के लिए बोल रहा है वैसे बोलना है, विदाउट टेकिंग एनी पॉजेस। और फ्लुएंसी अपनी आपने बिल्कुल उसको खराब नहीं होने देना। ओके, सो आई एम गोना से इट अगेन। I'm your customer and I had an accident yesterday. How can I make a claim for it? बहुत छोटा सा सेगमेंट है, कोई लंबी चौड़ी उसने बात नहीं की। एंड आई ऑलरेडी मेंशन, जब मैं एक्सप्लेन करी थी पैटर्न डायलॉग्स के लिए, तो मैंने मेंशन किया था कि हर सेगमेंट को सुनने के बाद वो उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव मार्किंग करेंगे। अगर आप इस तरह के सेगमेंट में कोई मिस्टेक नहीं करें तो आप मेक श्योर कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही। ओके, तो आप इस तरह के छोटे छोटे सेगमेंट्स को बिल्कुल एक सैंपल आंसर दें, ताकि कोई आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे ना हो। हाँ, अगर कोई बहुत लंबा सेगमेंट आ जाता है जिसमें ऑब्वियसली कुछ चांसेस हो सकते हैं मिस्टेक्स के, तो आप सोचेंगे बस वहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत नेगेटिव मार्किंग हो, और इस तरह के छोटे छोटे सेगमेंट्स में बिल्कुल वो आपको टिक टिक करता जाए कि इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है। ओके गाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। Oh, I'm sorry to hear that. Are you fine? Was it a major accident?
Was there another vehicle involved? ओह, ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। क्या आप ठीक हैं? क्या ये एक बड़ा हादसा था? क्या कोई दूसरी गाड़ी भी शामिल है? ओके, जो नोट्स मैंने लिए हैं पहले मैं वो डिस्कस कर लूँ। सॉरी, सॉरी टू हियर, फाइन, मेजर एक्सीडेंट, अनदर व्हीकल इन्वॉल्व। तो मैंने ये वर्ड्स राइट किए हैं, ठीक है। कितनी बातें उसने की? आई एम सॉरी टू हियर दैट, आर यू फाइन, वाज इट अ मेजर एक्सीडेंट, वाज देयर अनदर व्हीकल इन्वॉल्व। ठीक है, उसने 4 बातें की। अब आप इसको 3 में नहीं खत्म कर सकते या 5 में नहीं खत्म कर सकते, ठीक है। 4 बातें की हैं तो चारों को ही बस इंटरप्रेट करना है। कुछ वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, सेंटेंसेस ऐड नहीं कर सकते। ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। क्या आप ठीक हैं? क्या ये कोई बड़ा हादसा था? और क्या कोई दूसरी गाड़ी भी शामिल थी? देखिए गाइस, अगर आप ऑलरेडी सो दैट अगर आप एक एक लाइन में चारों बातें लिखेंगे ना, तो आप उनको आराम से चारों को इंटरप्रेट कर देंगे। अगर आप एक ही लाइन में चारों बातें कर देंगे ना, नोट्स लेंगे एक ही लाइन में, सॉरी टू हियर, फाइन, मेजर एक्सीडेंट और अनदर व्हीकल, तो आप सब कुछ मिक्स कर देंगे और आपकी बिल्कुल भी सही से इंटरप्रिटेशन नहीं होगी। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट जब भी आप नोट्स लें तो कंसिडर करें कि आप बुलेट पॉइंट्स में नोट ले रहे हैं। अगर वो एक बात कर रही है तो उसको एक लाइन में, दूसरी को दूसरी में, तीसरी को तीसरी में, चौथी को चौथी में लिखें। कोई जरूरत नहीं है पेज सेव करने की, ठीक है। इसी तरह फिर अगर आपको फॉर एग्जाम्पल क्या 4 बातें उसने की हैं, आपको किसी की समझ नहीं आई, तीसरी बात की समझ नहीं आई, आपने वो वाली लाइन छोड़ के चौथी बात को लिख दिया, ठीक है। कभी भी छोड़ना नहीं है नोट्स टेकिंग कि ओ माय गॉड मेरा तीसरा पॉइंट रह गया तो मैं अगला भी पॉइंट नोट ना करूं। कभी भी ऐसे नहीं करना। जो जो सुन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नोट्स लेते जाएं। तीसरी बात की समझ नहीं आई, वो लाइन छोड़ दें, चौथे में आप उसके नोट्स लें चौथी बात के। और फिर जब आप रिपीट लेंगे, यू विल आस्क देम कि ओके आई वांट टू गो फॉर अ रिपीट फॉर दिस सेगमेंट, तो आपके पास इनफ स्पेस होगी कि आपने नोट्स कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। तो वो पहली बात कि अगर आपने ये 2 वर्ड लिखे हैं तो एक तीसरा वर्ड ऐड कर लेंगे, दूसरी में भी नोट्स ऐड कर लेंगे, तीसरा था आप नोट्स ले नहीं सके तो वो आपके पास स्पेस है, आप वहाँ पे अपने नोट्स ले सकते हैं। और चौथी बात का आपने ऑलरेडी नोट किया हुआ है तो वो उस पर फिर आपको फोकस नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, फिर आपने जो बात मिस की है बस वही सुनेंगे, उसके नोट्स ले लेंगे, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नोट टेकिंग कैसे कर रहे हैं। नोट टेकिंग आपकी फ्लुएंसी को बहुत इफेक्ट करती है। अगर आपने एफिशिएंटली नोट्स नहीं लिए हैं, आपकी इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती। अब आपको ऐसे लग रहा होगा ये तो बड़े सिंपल सिंपल है, इनके लिए इतना क्या तरद्दुत करना, लेकिन बिलीव मी जो मुश्किल सेगमेंट्स, मुश्किल डायलॉग्स आते हैं उनके लिए ये टेक्निक होती है नोट्स की। ये भाई आप समझें कि आप अर्लियर स्टेज पे हैं इन डायलॉग्स के, मुश्किल डायलॉग्स भी आते हैं, ठीक है। कुछ एक इजी डायलॉग हो सकता है, एक मुश्किल हो सकता है, दोनों एवरेज हो सकते हैं, लेकिन इन द क्लास वी हैव टू मेक प्रिपरेशन फॉर एवरी काइंड ऑफ डायलॉग। तो इसको आप बिल्कुल भी इस तरह ना लें कि ये तो बड़ी हमारे वो है इजी थिंग है कि हम इसको आराम से कर लेंगे, इतना नोट्स पे हमें फोकस नहीं करना, ठीक है। जब आप इजी के लिए रेडी होंगे ना, तभी आप मुश्किल के लिए भी उनके इनिशियल स्टेजेस पे होंगे, ठीक है। ओके, सो दिस इज हाउ वी नीड टू टेक द नोट्स। नोट्स टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आप 2 से 3 वर्ड हर बात के लिख सकते हैं, इट मीन्स यू आर गुड इनफ इन टेकिंग नोट्स। एक एक वर्ड लेना भी मुझे लगता है कि फ्लुएंसी इतनी अच्छी नहीं हो सकती जितनी आप मिनिमम 3 वर्ड्स एक बात के लिखेंगे, ठीक है। ओके, सो क्या बात उसने कही? ओह, बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर। क्या आप ठीक है? क्या ये एक बड़ा हादसा था? क्या कोई दूसरी गाड़ी भी शामिल थी? ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। वो हाँ, ये एक तसादुम था, लेकिन खुशकिस्मती से मेरे एक्सरे से पता चलता है कि कुछ भी ज्यादा संजीदा नहीं है। मुझे बस कुछ खराशी है और मुझे उम्मीद है कि ये वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। Yes, it was a clash, but luckily my X-ray shows that
there is nothing more serious. I have few scratches and I am hopeful it will be alright with time. Okay, it was not difficult, but it was lengthy. ठीक है? ये जो नोट्स मैंने लिए हैं, I'm gonna say that तसादुम था, खुशकिस्मती से, तो मैंने जस्ट राइट खुशकिस्मती, एक्सरे कुछ भी ज्यादा सीरियस नहीं है, संजीदा सॉरी कुछ भी ज्यादा संजीदा नहीं है, खराशें आई हैं, उम्मीद है कि ये वक्त के साथ ठीक है। एंड पे जब बीप होती है मुझे तो खुद स्टॉप करना पड़ता है, तो वहाँ पे आपके लिए तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपने नोट्स कंटिन्यूसली राइट कर सकते हैं। और आई एम श्योर के लास्ट वाली जो बात कर रहा होता है वो बंदा वो पूरी बात हम लिख सकते हैं, ठीक है, इतना हमारे पास टाइम होता है, तो वो जरूर आप उसको पूरा लिख लिया करें, क्योंकि आपकी बात फिर अच्छे से आप फ्लुएंटली आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो मैंने ये लास्ट लाइन पूरी लिख ली, उम्मीद है आप वक्त के साथ, उम्मीद है कि ये वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। इसमें कोई भी ऐसा वोकैबुलरी वर्ड नहीं है। तसादुम होता है टक्कर हो जाना, ठीक है, तसादुम टक्कर हो जाना, क्लैश हो जाना। अगर आपको पता हो, अगर आप उर्दू न्यूज़ जरूर सुना करें, जियो एयरवाई किसी भी चैनल का आप एक बुलेटिन ऑन कर लें और उसको आप डेली में कोई एक या दो बुलेटिन भी सुन लेंगे तो आपकी उर्दू बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हमारी उर्दू न्यूज़ में बहुत ज़्यादा उर्दू के वर्ड्स इस तरह के यूज होते हैं, ठीक है। तसादुम का मतलब होता है टक्कर हो जाना, क्लैश इसको कोलिजन भी बोलते हैं, खुशकिस्मती फॉर्चुनेटली और लकीली। एक्सरे से पता चलता है, माई एक्सरे शोज दैट देयर इज नथिंग मोर सीरियस, आई हैव फ्यू स्क्रैचेस, खराशियां होता है, स्क्रैच आ गए हैं, बट मुझे उम्मीद है कि ये वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, आई एम होपफुल दैट इट विल बी फाइन विद टाइम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। How did the accident happen? Can you explain that to me in detail? ये हादसा कैसे पेश आया, क्या मुझे तफसील से इसकी वजाहत कर सकते हैं? बहुत ही छोटा सेगमेंट है, इसमें तो होपफुली कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई इसमें वोकैबुलरी वर्ड है, ठीक है। सिंपल एक बात उसने पूछी और ये सिंपल मतलब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल ये सेम वैसी ही बातें हो रही हैं जैसे अगर हमें किसी इंश्योरेंस कंपनी से कोई बात करनी हो, तो वही डायलॉग्स हैं, वही बातें हैं। अगर हमारा खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, ऑब्वियसली हम इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करेंगे, यही गुफ्तगू होगी हमारी, यही कन्वर्सेशन होगी, ठीक है। तो सर जस्ट टेक इट एज के ये रियल में ही कोई कन्वर्सेशन चल रही है, मेरे साथ ही चल रही है और मैं इसको कैसे जवाब दूंगा, ठीक है। सो आपको पहले से पता होनी चाहिए अच्छा क्या आप बात करने वाला है और क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये हादसा कैसे पेश आया, क्या मुझे तफसील से इसकी वजाहत कर सकते हैं? एक्सप्लेन करना होता है वजाहत करना, एक्सप्लेन का मीनिंग है वजाहत करना, और डिटेल में मतलब होता है कि तफसील के साथ, डिटेल्स में बताओ, मुझे डिटेल में बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, ठीक है, मुझे तफसील से बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, ठीक है। इनको आई विल से दैट कि ये जो हमारी वोकैबुलरी डायलॉग्स की वोकैबुलरी लिस्ट है इसमें मैंने मेंशन किया है इस तरह के वर्ड, सिंपल वर्ड जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। अगर वो ये कॉमन वर्ड हैं, किसी भी डायलॉग में यूज हो सकते हैं, तो यू शुड कीप दिस वोकैबुलरी ऑन योर फिंगरटिप्स, ठीक है। तो ये हादसा कैसे पेश आया, क्या मुझे तफसील से इसकी वजाहत कर सकते हैं? जी हाँ, मैं सबज बत्ती पे सड़क पार कर रहा था, लेकिन अचानक एक गाड़ी कहीं से आई और हम दोनों की टक्कर हो गई। Yes, I was crossing the road on green light, but suddenly a car came from somewhere and we both get collided or we both get hit, जो भी वर्ड आपको इजी लगे, और we both get clashed। नोट्स जो मैंने लिए वो मैं पढ़ देती हूँ। सबज बत्ती, सड़क पार कर रहा था, एक गाड़ी और हमारी टक्कर हो गई। सो छोटा सा सेगमेंट था, बात वैसे भी जहन में भी थी, ठीक है, लेकिन फिर भी लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि कोई पता नहीं कौन सा सेगमेंट लंबा आ जाए, ठीक है। आप इसको नहीं एंटिसिपेट कर सकते कि अभी वो लंबा सेगमेंट आएगा कि छोटा आएगा, ठीक है। यू हैव टू टेक नोट्स फॉर एवरी सेगमेंट। आपके माइंड में ज्यादा से ज्यादा चीजें आप मेमोराइज कर सकते हैं, दैट्स वेरी गुड।
लेकिन वर्ड्स रिटन नोट्स ऑलवेज हेल्प यू, ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाले चांसेस भी नहीं होंगे। यस, आई वॉज क्रॉसिंग द रोड ऑन ग्रीन लाइट, सबज बत्ती ग्रीन लाइट, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इस तरह के वर्ड्स वो इंग्लिश में भी बोल देते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि उर्दू में क्या मतलब है, ठीक है। ग्रीन लाइट्स का सबज बत्ती, सुरख बत्ती या पीली बत्ती, ये 3 बत्तियों के कलर होते हैं ना, जैसे कि अचानक एक गाड़ी कहीं से आई और हम दोनों की टक्कर हो गई, बट सडनली अ कार केम फ्रॉम समवेयर एंड वी बोथ गेट कोलाइडेड। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। So have you got the details of the other driver, like his license number or contact details? Do you remember the colour and model of the other car? Any photos of the accident if you have taken? Okay, I have taken the notes, लेकिन स्टिल आई वांट टू कंफर्म, मतलब मुझे लगता है मैंने मेरी इंफॉर्मेशन मिस की है, आई विल टेक अ रिपीट, क्योंकि मेरे पास ये ऑप्शन है, ठीक है। मैंने अगर मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ मैं ना भी रिपीट लूँ तो मैं कर सकती हूँ इसको, बट स्टिल आई विल टेक अ रिपीट, क्योंकि ये ऑप्शन मेरे पास है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सो व्हाई शुडंट आई अवेल इट। अब मैंने जो नोट्स लिए हैं उन्हीं में मैं कुछ कुछ वर्ड्स और ऐड कर दूंगी, ताकि जब मैं उनको करूँ तो वो फ्लुएंसी मेरी इफेक्ट ना हो, और जो जो बातें उसने पूछी हैं मैं तरतीब वाइज ही उनको मैं उर्दू इंटरप्रेट करूँ, ठीक है। Number or contact details? So have you got the details of the other driver, like his license number or contact details? Do you remember the colour and model of the other car? Any photos of the accident if you have taken? Okay. क्या आपने दूसरे ड्राइवर की तफसीलात ली थी, जैसा कि लाइसेंस नंबर या राब्ते की तफसीलात? क्या आपको गाड़ी का रंग और मॉडल याद है? क्या आपने हादसे की कुछ तस्वीर ली थी? मैंने इसको पहले इसलिए कर दिया क्योंकि मेरे आप इंटरप्रिटेशन तभी क्विकली कर सकते हैं जैसे ही आप सुने उसको फौरन उसको इंटरप्रेट करें, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं उसने क्या बातें करी। हैव यू टेकन द डिटेल्स ऑफ द अदर ड्राइवर, ठीक है। सबसे पहले ये नोट्स बनते हैं, डिटेल्स ऑफ अदर ड्राइवर, लाइक लाइसेंस नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर, 3 बातें हो गई। हैव यू डू यू रिमेंबर द कलर और मॉडल, चौथी बात उसने कलर और मॉडल, एनी फोटोज यू हैव टेकन। सो ऑल टुगेदर ये 5 बातें की हैं, वही बात मैं दोबारा करूंगी, इसमें कोई एडिशन और ओमिशन नहीं होना चाहिए। अगर ओमिशन का खर्चा था, मुझे था, मैंने रिपीट ले लिया, ना भी लेती तो भी मैं कुछ ना कुछ इसको कर देती, लेकिन फिर मैं अगर मैं उसमें से अगर राब्ता का नंबर भूल जाती या कोई और बात की मैंने फोटोज वाली बात को एक्सप्लेन ना करती, या कलर मॉडल या कलर, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी मैं मिस नहीं करना चाहती, ठीक है, कि इसमें मेरी कहीं भी नेगेटिव मार्किंग हो, ठीक है। मैंने रिपीट ले लिया, अब मैंने अपने नोट्स भी कंप्लीट कर लिया और मुझे कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तभी होगी अगर आप कोई मिस्टेक करेंगे। अगर आप नहीं कोई मिस्टेक करेंगे, अपनी फ्लुएंसी बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे, तो आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ओके, सो आई रिपीट इट अगेन। ओके, लाइसेंस को लाइसेंस ही बोलते हैं, लाइसेंस नंबर जैसे पासपोर्ट नंबर होता है, लाइसेंस नंबर, और मॉडल, गाड़ी का मॉडल भी मॉडल ही बोलेंगे, रंग या मॉडल। और तस्वीर, तस्वीर होता है फोटोज, तो तस्वीर, तस्वीर की प्लूरल होता है, जमा, तस्वीर, तस्वीर। ओके, क्या आपने दूसरे ड्राइवर की मालूमात ली थी, जैसा कि लाइसेंस नंबर या रास्ते का नंबर? क्या आपको गाड़ी का रंग और मॉडल याद है? क्या आपने हादसे की कुछ तस्वीर ली थी? ओके, any questions so far? कुछ भी हो, you can come in the class, contact me, I can explain everything for you. So are you guys noticing that कि इस तरह के वर्ड्स कितने यूज होते हैं, डिटेल्स, कॉन्टेक्ट, तो ये कुछ हमारी कॉमन वोकैबुलरी होती है, जो वर्ड्स किसी भी हम मतलब रोजमर्रा जिंदगी में यूज करते हैं, तो उनकी मीनिंग हमें पता होनी चाहिए।
क्योंकि उर्दू लैंग्वेज में हम इतने ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे अभी भी मैं आपसे बात करते हुए कर रही हूँ, इतने ज़्यादा इंग्लिश के अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू बोलते हुए कि हमें उनके उर्दू मीनिंग ही नहीं पता होते, ठीक है। ये पता भी हो तो हमारी जुबान पे नहीं चढ़ते। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। जी हाँ, वो मैं आपको टेक्स्ट कर सकता हूँ। मेरी गाड़ी अगले हिस्से से बहुत खराब हो गई थी और कल हमें उसे खींचना पड़ा। वेरी लकी यू गाइस, के मतलब इस डायलॉग में वो कह रहा है कि मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेक्स्ट कर दूंगा, वरना आपको मेंटली रेडी होना पड़ता। आपको रेडी होना चाहिए कि अगर उसने इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं तो वो उस तरह उसका जवाब भी देगा कि गाड़ी का रंग या मॉडल क्या था, उस बंदे के लाइसेंस नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, ठीक है। तो ये सारी तफसीलात अब उसने इस डायलॉग में कह दिया कि मैं टेक्स्ट कर दूंगा, लेकिन किसी डायलॉग में वो हो भी सकता है कि वो ये सारी तफसीलात उर्दू में दे, फोन पे दे, ठीक है। तो उसके लिए बी रेडी, नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जहां भी आप एक नंबर की भी मिस्टेक करेंगे वो सारा नंबर रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा, जो कि मेजर मिस्टेक में आएगा। और कॉन्टेक्ट नंबर और किसी का नाम, फोन नंबर और या पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, ये आप गलत नहीं बोल सकते, ठीक है। एड्रेस भी। सो यस, आई कैन टेक्स्ट यू दैट, सॉरी, I repeat myself. Yes, I can text you those details. My car had damage from the first front part, and yesterday we had to pull it up. हमें इसको खींचना पड़ा, और we had to tow it. tow भी होता है खींचना, ठीक है। So it is another word for that. फिर एक और चीज मैं आपको मेंशन कर दूं, जैसे मैंने बोला सॉरी, आई रिपीट माई सेल्फ। अगर आपको लगे कि आपने कहीं बहुत ज़्यादा पॉजेस ले लिए हैं, या अगर आप सेकंड टाइम उसको बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छे से बोल सकते हैं, तो यू कैन से दैट, ओके। उससे क्या होगा कि जब आप कहेंगे सॉरी, आई रिपीट माई सेल्फ, तो इससे पहले का जो आपने बोला होगा वो उसको बिल्कुल ही नहीं सुनेंगे, और उसके सॉरी के बाद वाले को कंसिडर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग मार्क्स देंगे, ठीक है। तो इफ यू थिंक दैट कि आप सॉरी बोल के अपने आप को रिपीट अच्छे से कर सकते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन अगर आप रिपीट करें खुद को और वो पहले से भी बुरा हो तो बेटर है कि आप ऐसा सॉरी बोल के रिपीट मत करें, ठीक है। इफ़ यू कैन डू इट मच बेटर, फ्लुएंसी अच्छी करके आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं तो ज़रूर करें, अगर आपने बहुत ज़्यादा पॉजेज ले लिए हैं, ठीक है। इसकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, समहाउ वो कुछ मार्क्स काट लेते हैं, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आता है तो वो उन्होंने मेंशन किया होता है कि आप आपने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं, ठीक है। अगर आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को करेक्ट किया होगा इस तरह बोल के सॉरी, आई करेक्ट माई सेल्फ, आई रिपीट माई सेल्फ, तो वो मेंशन कर देंगे कि आपने बहुत ज़्यादा सेल्फ करेक्शन की है, ठीक है। तो कहीं कहीं आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ आपको लगे कि अच्छा मैं इसको अच्छे से और एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जैसे मैंने किया था कि मतलब मुझे पॉजेस आ गए तो आई सेड सॉरी, आई रिपीट माई सेल्फ एंड से इट अगेन, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं करना, कहीं एक आध दो दफ़ा आपको लगे कि मैं कर सकता हूँ तो ज़रूर कर लें, अपने आप को करेक्ट कर लें। और अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं कि इंग्लिश को इंग्लिश में ही इंटरप्रेट कर देते हैं या उर्दू को उर्दू में ही बोलने लग जाते हैं, तो जहाँ भी आपको लगे, याद आ जाए कि आपने अब उर्दू बोलनी है या अब इसको इंग्लिश में करना है, तो ज़रूर अपने आप को करेक्ट करें, ठीक है। कभी भी याद आ गया, पता लग गया कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे उर्दू बोलनी है, से सॉरी, आई करेक्ट माई सेल्फ एंड डू इट इन अदर लैंग्वेज, ओके। और ये मिस्टेक क्यों होती है कि आप इंग्लिश को इंग्लिश में ही बोलने लग जाते हैं, उर्दू को उर्दू में, क्योंकि आप नोट सारे इंग्लिश में ही ले रहे होते हैं। आई जो कि अब आजकल के मेरे करंट स्टूडेंट्स हैं, उर्दू लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो वो रोमन इंग्लिश को जैसे हम टेक्सटिंग वाली लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसी में ही वो नोट्स ले लेते हैं उर्दू के भी, तो फिर पता नहीं चलता कि अब हमने उर्दू बोलनी है कि इंग्लिश। तो उसके लिए भी मैंने एक अपना सजेस्ट करती हूँ स्टूडेंट्स को कि आप यू एंड ई लिखते जाएं। अगर आपने उर्दू बोलनी है तो क्विकली यू लिख दें, मीन्स कि अब आपने उर्दू ही बोलनी है, ठीक है। बेशक आप इंग्लिश में नोट्स ले रहे हैं, इंग्लिश में टेक्स्टिंग लैंग्वेज में अपने नोट्स ले रहे हैं, जब आपने यू लिखा होगा तो यू हैव इन योर हेड कि अब आपने उर्दू ही बोलनी है, ठीक है। और या दिस इज द ऑप्शन फॉर दैट, मतलब इस तरह के मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि अगर आप सेम लैंग्वेज में करेंगे तो मीन्स के जीरो फॉर दैट सेगमेंट, एक सेगमेंट में जीरो,
मीन्स कि आपका होल टेस्ट इज गॉन, के मतलब उसमें पास होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को फोकस रखना है और उनको ओके नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट। Okay, we will check with the other insurer and will confirm it was at fault. If the damage is too much and the repair bill is through the roof, then your car may end up being a write-off. ठीक है, हमें दूसरे बीमा दहिंदगान से चेक करना होगा कि कौन गलती पर था। अगर नुकसान बहुत ज्यादा हुआ और ठीक कराने का खर्चा भी ज्यादा हुआ तो आपकी गाड़ी को राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ का मतलब होता है खत्म करना, ठीक है, तो आपकी गाड़ी को खत्म करना पड़ेगा। इससे थोड़ा मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा, ठीक है। राइट ऑफ का मतलब यहाँ कॉमनली सबको पता होता है राइट ऑफ क्या होता है, ठीक है, तो आप राइट ऑफ का वर्ड यूज कर सकते हैं मीनिंग कन्वे करने के लिए। अगर आप ये भी बोल देंगे तो आपकी गाड़ी को खत्म करना पड़ेगा, ये भी ठीक है, कोई इसमें वो मार्किंग का डिडक्शन नहीं होगा। लेकिन मीनिंग कन्वे करने के लिए यहाँ अगर आपको राइट ऑफ का सही से नहीं मतलब आप उसको बोल पा रहे हैं या आपको लग रहा है इसे मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा, तो आप राइट ऑफ का मतलब बोल सकते हैं, राइट ऑफ का वर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। हम इसे राइट ऑफ करना पड़ेगा, इससे ज्यादा अच्छा मीनिंग कन्वे होगा, ठीक है। Okay, I already mentioned Bima the Hindagan insurance provider. So what she said that we'll check with other insurer to confirm. Other insurer दूसरा बीमा the Hindagan दूसरी गाड़ी का जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर था उससे वो कंफर्म करेगी, ठीक है। हमें दूसरे बीमा द हिंदगान या दूसरी बीमा कंपनी से ये भी यूज कर सकते हैं, दूसरी बीमा पर फराहम करने वाली कंपनी से चेक करना होगा या इस बात की तस्दीक करनी होगी कि कौन गलती पर था, हु इज एट फॉल्ट। इफ द डैमेज इज टू मच, अगर नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, एंड द रिपेयर बिल इज थ्रू द रूफ, उसने बोला थ्रू द रूफ मतलब खर्चा बहुत ज्यादा हो गया, हमारे उस लिमिट से आगे निकल गया, ठीक है, थ्रू द रूफ। अगर नुकसान बहुत ज्यादा हुआ और ठीक कराने का खर्चा बहुत ज्यादा हुआ तो आपकी गाड़ी को राइट ऑफ भी किया जा सकता है, ठीक है। सो व्हाट आई सेड टू यू, ट्रांसलेशन नहीं करनी, इंटरप्रिटेशन करनी है। तो ये बात तो हमें कॉमनली भी पता होती है, ठीक है। हमारा कोई अगर हम इंश्योरेंस प्रोवाइडर हमें ये बात बताते हैं ओके कि अगर नुकसान ज्यादा होगा और उसको ठीक गाड़ी को ठीक कराने का खर्चा ज्यादा होगा तो हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। दिस इज द कॉमन थिंग ऑल इंश्योरेंस प्रोवाइडर से, ठीक है। तो आप अपनी कॉमन सेंस को यूज करके भी इस तरह मीनिंग कन्वे कर सकते हैं कि आप सोचने बैठ गए ओके थ्रू द रूफ क्या है और बस उसका मीनिंग, ये भी इडियम्स है और उनका मीनिंग कन्वे करना है। ऑल राइट, आई डोंट थिंक इसमें कुछ है। अगर आपको ये वाला सेगमेंट दोबारा सुनना है आई कैन रिपीट इट। We will check with the other insurer and will confirm it was at fault. If the damage is too much and the repair bill is through the roof, then your car may end up being a write-off. So your car may end up with being a write-off. Okay, let's move to the next one. तो ये कैसे काम करता है, क्या मैं इसके बारे में मजीद जान सकता हूँ? How does it work? Can I know more about it? Simple again, no negative marking, just say it. इस तरह के छोटे सेगमेंट भी आ सकते हैं, ठीक है, इस तरह के आएंगे क्योंकि कन्वर्सेशन में ये कॉमन है कि एक बंदा क्वेश्चंस करता है दूसरा आंसर करता है, या एक बंदा एक बात करता है दूसरा उसके जवाब में कोई बात करता है। तो कोई छोटी बात करेगा और कोई बड़ी बात करेगा, ठीक है। अब उसने पूछा अच्छा ये कैसे काम करता है, मुझे इसके बारे में बता सकते हैं मजीद, तो मजीद बता सकते हैं मीन्स कि अब उसको वो एक्सप्लेन करने जाएगी तो नेक्स्ट सेगमेंट हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि अब लंबा होगा, ठीक है। तो क्या आपके लिए टिप है कि छोटे सेगमेंट्स को इतना करेक्ट करें कि उसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग ना हो और वो उसको बिल्कुल टिक करे कि अब यहाँ पे कोई मार्क्स काटने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम करेंगे ओके हाउ डज इट वर्क, कैन आई नो मोर अबाउट इट, so what is it? Write-off is a condition when your car is too badly damaged to be repaired to a standard that is considered safe for road use. Rather than spending for the repairs, the insurance will pay you some amount. We will look into everything and make the appropriate
such a long segment. Okay, now if I want to go for repeat तो मेरा -1 होगा. So let's take -1 क्योंकि मैं चाहती हूँ, वैसे बात चलें कुछ हद तक समझ आ भी गई है, लेकिन let's listen it again what she said. बारे में मजीद जान सकता हूँ. Write-off is a condition when your car is too badly damaged to be repaired to a standard that is considered safe for road use. Rather than spending for the repairs, the insurance will pay you some of it. We will look into everything and make the appropriate payment. Okay, so इस सेगमेंट में उसने राइट ऑफ को एक्सप्लेन किया है कि ये राइट. So what she said, उसने सिर्फ राइट ऑफ को एक्सप्लेन किया है. इसको आप अपने मीनिंग्स में भी उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं. ठीक है, अब इसका मैं इंटरप्रिटेशन करने लगी हूँ. जो इसका आंसर है, देन वी विल डिस्कस दिस. राइट ऑफ एक ऐसी सूरत है जब आपकी गाड़ी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा हो और इसकी मुरम्मत इस मियार की करनी हो कि इसे सड़क पर इस्तेमाल के लिए महफूज समझा जाए. इसकी मरम्मत पर इतना खर्च करने की बजाय बीमा कंपनी आपको इतनी रकम अदा कर देती है. हम हर चीज का जायजा लेंगे और मुनासिब अदायगी कर देंगे. ओके, सो व्हाट शी सेड, राइट ऑफ इज अ कंडीशन. ठीक है, अगर आपने पूरे नोट्स नहीं लिए, 2 दफा भी सुन लिया, तो आपको कुछ इसमें फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो आप सिंपली राइट ऑफ का तो आपको पता ही है क्या होता है. कि राइट ऑफ होता है कि अगर आपकी गाड़ी इतनी इस हद तक खराब हो कि उसको मरम्मत करने पर इतना खर्च करने के बजाय बीमा कंपनी आपको उसके मुताबिक रकम अदा कर देती है. ठीक है, ये राइट ऑफ होता है. आप उसको सिंपली अपनी जुबान में, अपने अल्फाज में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन आखिरी बात जो उसने की है वो जरूर आपने मेंशन करनी. हम हर चीज का जायजा लेंगे और एक मुनासिब अदायगी कर देंगे, मुनासिब रकम अदा कर देंगे. एंड नाउ व्हाट शी सेड इज, राइट ऑफ इज अ कंडीशन. कंडीशन होता है कि एक ऐसी सूरत हाल या एक ऐसी हालत या एक ऐसी सूरत. ठीक है, इज अ कंडीशन व्हेन योर कार इज टू बैडली डैमेज्ड टू बी रिपेयर्ड. जब आपकी गाड़ी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा हो और इसको मुरम्मत करना, बैडली टू रिपेयर टू स्टैंडर्ड, इस मियार पर इसकी मुरम्मत करना, दैट इज कंसिडर्ड सेफ फॉर रोड यूज. कि ये सड़क पर इस्तेमाल करने में महफूज समझी जाए. सेफ होता है महफूज, स्टैंडर्ड होता है मियार. इस मियार पर उसकी मुरम्मत की जाए कि वो दोबारा सड़क पर इस्तेमाल करने के लिए महफूज समझी जाए. देन spending for the repair, the insurance will pay you some amount. मुरम्मत पर खर्चा करने की बजाय इंश्योरेंस कंपनी आपको उतनी रकम अदा कर देगी. बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी, इंश्योरेंस विल पे यू सेम अमाउंट. बीमा कंपनी आपको उतनी रकम अदा कर देगी या कर देती है. वी we are looking to everything and make the appropriate payment. हम हर चीज का जायजा लेंगे. ठीक है, लुकिंग टू एवरीथिंग मतलब हर चीज को कंसीडर करेंगे. हम पूरी सूरत हाल का जायजा लेंगे और मुनासिब अदायगी कर देंगे. मेक द एप्रोप्रिएट होता है मुनासिब पेमेंट अदायगी. ठीक है, एक मुनासिब अदायगी या मुनासिब रकम अदा कर देंगे. ठीक है, तो ये होता है कि आपने मीनिंग कन्वे कर दिया. जहाँ पे आपको लगे कि बहुत ज्यादा मुश्किल है तो जस्ट इट्स सिंपल, राइट ऑफ क्या होता है उसको एक्सप्लेन कर दें. दैट्स इट. ऑलराइट, so this dialogue ends here. मुकालमे का इख्तिताम हुआ. एक डायलॉग हमने कर लिया. इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यू कैन मेक नोट्स एंड कम टू द क्लास एंड वी कैन डिस्कस. और नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, अपनी वोकैबुलरी पर मूव करने से पहले मैं अगेन आपको CECA की सारी सर्विसेज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं उनको एक दफ़ा फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. जैसा कि ये नाटी क्लासेस है, आप इनको आप अवेल कर रहे हैं. यहाँ पे ये वाली सर्विसेज को ओके. So at CECA, if your
student visa is going to expire, you can come here and you can apply for free student visa extension. आपको स्टूडेंट एक्सटेंशन के लिए कोई फीस भी पे नहीं करना होगी. चीपेस्ट ऑप्शन फॉर स्टूडेंट हेल्थ कवर और विजिटर हेल्थ कवर. इसके अलावा फ्री टीआर प्रोवाइड, फ्री टीआर एप्लीकेशन, टीआर मींस 485 वीजा, free PT and IELTS if you are tutor of NATI classes, and free NATI classes in 4 languages: Hindi, Nepali, Punjabi and Urdu if you are tutor of PTE and IELTS classes. Canadian immigration, अगर आपको कनाडा मूव करना चाहते हैं तो आप अपनी प्री स्किल असेसमेंट करा सकते हैं, ठीक है, कि आप कहाँ पे लैंड करते हैं, क्योंकि कनाडा मूव करने के लिए आपको अपना पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना होगा. आपको पॉइंट्स बता दिए जाएंगे और जहां आप मोर पॉइंट्स अवेल कर सकते हैं वो ऑप्शंस भी आपको बता दी जाती हैं. और किन किन पॉइंट्स पे कौन सी स्टडी लेके कौन सी फील्ड में जाके यू कैन अप्लाई और कौन सी स्टेट में जाके यू कैन गेट PR इजीली इन कनाडा. सो कॉलेज एडमिशन, दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट, कि आप choice college admission or course admission selection is very important, so always come at CA. आप इसको डबल चेक करें, आप इसको कंसल्ट करें हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कि कौन सा कोर्स लेके you can get PR easily in Australia or in Canada either. And pre migration consultation, कोई भी वीजा रिलेटेड इशू प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विसेज, आपको कंसल्टेशन दी जाएगी. सो प्लीज कम एट CA और आप अपनी कंडीशन, अपनी सिचुएशन को जरूर डिस्कस करें. यू कैन टॉक टू देम ओवर द फोन और यू कैन ईमेल टू देम एंड यू कैन विजिट आवर ऑफिसेस. थैंक यू. ओके, नाउ वी विल डिस्कस द वोकैबुलरी. हम कुछ टॉपिक से रिलेटेड वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे और हम बीमा की वोकैबुलरी को भी एक दफा रिवाइज करेंगे. ओके, सो व्हाट आई सेड कि हमें वोकैबुलरी एक दफा रिवाइज करनी है फॉर द बीमा इंश्योरेंस वन. इस डायलॉग में हादसा, एक्सीडेंट, दावा, क्लेम, दायर करना, लॉन्च करना, या मेक अ क्लेम, जैसे उसने बोला था इसके लिए कैसे दावा दायर करूं. सो हाउ कैन आई मेक अ क्लेम, हाउ कैन आई लॉन्च अ क्लेम. सो क्लेम होता है दावा करना. उर्दू में आए दावा करना तो भी आपको इसका मीनिंग आना चाहिए और इंग्लिश में आए तो वाइस वर्सा. यू शुड नो ईच वर्ड, उर्दू और इंग्लिश दोनों वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है. क्लेम, दावा करना. थोड़ा सा मैं ऐसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो वोकैबुलरी है और जो वोकैबुलरी लिस्ट हम प्रोवाइड करते हैं उसमें मीनिंग्स उर्दू में लिखे हुए हैं. सो इफ आई विल डिस्कस द वर्ड्स. ओके, सो जो आपने वोकैबुलरी आप नोट्स ले लें अपने, ठीक है. अगर आप उर्दू नहीं पढ़ सकते, ठीक है, जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं अगर वो उर्दू नहीं पढ़ सकते तो आप अपने नोट्स ले लें, आप इंग्लिश में ही उसको राइट कर लें. और मैं भी नोट्स बना रही हूँ जो कि वोकैबुलरी के होंगे, जो कि इंग्लिश 2 में इंग्लिश में ही लिखने की कोशिश करूंगी, जो कि हमारी टेक्स्टिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है. तो आप अपने तौर पे नोट्स ले लें जो कि मैं अभी ये बोल रही हूँ, उनके आप एटलीस्ट वोकैबुलरी लिस्ट बना लें. दावा करना, क्लेम करना, हादसा, एक्सीडेंट. हादसा उर्दू का वर्ड है एक्सीडेंट. अफसोस, सॉरी. साधु, कुलैयन और क्लैश, तो साधु. तो उर्दू में इसका मतलब होता है टक्कर हो जाना, ठीक है, हिट हो जाना. क्लैश हो गया, कुलैयन हो गई. खुशकिस्मती, फॉर्चुनेटली. बदकिस्मती, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है. ये भी बहुत कॉमन वर्ड्स हैं. यू शुड बी एट योर फिंगरटिप्स. ये मतलब समटाइम्स होता है स्किप हो जाते हैं माइंड से, तो आपको इनको कंटिन्यूसली रिवाइज रखें इस तरह के वर्ड्स को. संजीदा, सीरियस, ठीक है. और इसी तरह अगर वो बोले इंग्लिश में कि कुछ भी सीरियस नहीं था तो हमें इसका उर्दू में मीनिंग आना चाहिए, ठीक है. संजीदा नहीं था. खराशें होता है स्क्रैचेस. तफसील, एक्सप्लेन, सॉरी, तफसील, डिटेल. एक्सप्लेन होता है वजाहत करना. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी, क्या मुझे इसकी वजाहत कर सकते हैं.
वजाहत करना, एक्सप्लेन एंड डिटेल में, ठीक है, तफसील के साथ होता है ना कुछ ऐसे इसमें, एक्सप्लेन योर ओपिनियन इन डिटेल्स, अपने राय का इजहार करें तफसील के साथ। सो डिटेल्स में तफसील और एक्सप्लेन में वजाहत। सब्ज बत्ती, ग्रीन लाइट, अचानक, सडनली। ओके, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, राब्ते का नंबर या कॉन्टैक्ट डिटेल्स, राब्ते की तफसीलात या राब्ते का नंबर भी ठीक है, राब्ते का नंबर। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया है कि 4 चीजें मोस्टली इकट्ठे पूछते हैं, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ एंड कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये सब चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे इनके मेन्यू होनी चाहिए, नाम, पता, राब्ता नंबर और तारीख पैदाइश, ठीक है। तो इसी तरह अब इसमें से उसने पूछ लिया लाइसेंस नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मतलब लाइसेंस नंबर या राब्ते का नंबर, कलर और मॉडल, रंग या मॉडल, गाड़ी का मॉडल, मॉडल ही रहेगा, फोटोज, तस्वीर, एक्सीडेंट, हादसा, वो मैं आपको टेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो टेक्स्ट उसने खुद ही उर्दू में उसको वर्ड को टेक्स्ट भी लिखा है, ठीक है। ये नहीं कहा कि मैं आपको मैसेज भी इंग्लिश का वर्ड ही होता है, ठीक है, मैं आपको मैसेज भेज देता हूँ, मैं आपको टेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके लिए हमें इसकी वोकैबुलरी मीनिंग कोई नहीं चाहिए इसका, ठीक है। खींचना पड़ा, गाड़ी को खींचना पड़ा, टो द कार। इंश्योरर, बीमा दहिंदगान, इंश्योरर, इंश्योरेंस, बीमा, इंश्योरर, अदर इंश्योरेंस प्रोवाइडर, बीमा दहिंदगान। कंफर्म, तस्दीक करना, राइट ऑफ ही है। कंडीशन, एक ऐसी हालत है, एक ऐसी सूरत है, सूरत, राइट ऑफ इज अ कंडीशन, राइट ऑफ एक ऐसी सूरत है या एक ऐसी हालत है। when you are too badly to damage होता है नुकसान, रिपेयर, मुरम्मत कराना, स्टैंडर्ड, मियार, अमाउंट, रकम, एप्रोप्रिएट, मुनासिब, पेमेंट, अदायगी, मुनासिब अदायगी करना। Okay, so this is all about insurance. मेरा नहीं ख्याल इससे ज़्यादा इंश्योरेंस की कोई वोकैबुलरी रिक्वायर होगी। Let me check again अगर कोई ये डायलॉग भी चेक कर लेते हैं। Dialogue 1. The dialogue is Okay, so we have one more dialogue for insurance. We will definitely discuss in any other class. ठीक है, हम टॉपिक्स ऑब्वियसली रोटेट करते जाएंगे, तो फिर उससे रिलेटेड कोई ना कोई वोकैबुलरी और भी हमें मिल जाएगी, ठीक है। जितने ज़्यादा डायलॉग्स करेंगे उतनी ही ज़्यादा वोकैबुलरी होगी हमारे पास डिस्कस करने के लिए, हमारे पास लर्न करने के लिए, ठीक है। अब मैं ये वोकैबुलरी जो मैं बताती हूँ कि जनरल डायलॉग्स की वोकैबुलरी है, इसका पीडीएफ ऑलरेडी मैं कुछ स्टूडेंट्स को सेंड कर चुकी हूँ। व्हेन यू विल कम इन द क्लास यू विल गेट आल्सो दिस वोकैबुलरी। तो ये है डायलॉग्स की वोकैबुलरी जो कि मोस्टली कॉमनली किसी भी डायलॉग में यूज हो सकती है, ठीक है। इफ यू हैव like learn this vocabulary by heart, I can assure you that you have done around 80% of the vocabulary you are done, ठीक है। the topic wise vocabulary you just need to read that, आपको फिर वो ज़्यादा उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्ड इसमें हम डिस्कस कर चुके होते हैं, इसमें हम लर्न कर चुके होते हैं। ओके,
मैं ये वोकैबुलरी को डिस्कस करूंगी, आप अपने नोट्स जरूर लेते जाएं, क्योंकि मैंने बताया इसमें कि मैंने उर्दू में इसके मीनिंग लिखे हुए हैं, तो आप अपने अपने रोमन इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है। प्रेशर, सबसे फर्स्ट वर्ड है प्रेशर, दबाव। ठीक है, मुझ पे इस चीज का प्रेशर है, मुझ पे जॉब का प्रेशर है, मुझ पे ये घर के खर्चे उठाने का प्रेशर है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है दबाव है मुझ पे, ये मुझ पे दबाव है। आई एम अंडर प्रेशर, सेम मीनिंग है, मुझ पे दबाव है। कंप्लेन करना होता है शिकायत करना, कंप्लेन, शिकायत। स्टेडली, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, ये पेन आहिस्ता आहिस्ता मेरी जान ले रहा है, ये मुझे इससे बहुत तकलीफ हो रही है, किसी भी सेंस में यूज हो सकता है। सो स्टेडली, आहिस्ता आहिस्ता। कार्टिलेज, कार्टिलेज हमारी होती है जैसे हमारी ईयर बोन, नोज बोन, ये हमारी कार्टिलेज बोन्स होती हैं। इसका मतलब होता है नरम हड्डी। जो सिंपल बोन्स है वो तो हड्डी है, ठीक है। कार्टिलेज है जो वो नरम हड्डी, उसका मीनिंग है नरम हड्डी। ठीक है। मसल्स, पट्टे, मसल, पट्टा, मसल्स, पट्टे। इन्फ्लेमेशन, सूजन। इन्फ्लेमेशन, सूजन। डैमेज, नुकसान, डैमेज, नुकसान। अच्छा, हड्डी को नुकसान नहीं पहुंचा है ज्यादा, कुछ इस सेंस में जैसे कि वर्ड यूज हो सकता है, तो बोन इज नॉट टू मच डैमेज। ठीक है। सिम्टम्स, अलामात। किसी भी बीमारी के जैसे सिम्टम्स होते हैं उनको उर्दू में बोलते हैं अलामात। डायग्नोस होता है तशखीस करना, किसी बीमारी को डायग्नोस करना, ऑब्वियसली इसको मतलब होता है तशखीस करना, तशखीस करना या पता चलाना, मालूम करना। बट द बेस्ट वर्ड इज तशखीस करना, डायग्नोस करना, तशखीस करना। सिम्टम्स, अलामात, ये बहुत कॉमनली वर्ड यूज होते हैं क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड अक्सर डायलॉग आ जाते हैं, सो यू शुड लर्न दिस वर्ड्स। आर्थराइटिस, कुछ बीमारियों को हम याद करेंगे नाम, उनके मीनिंग्स भी। मैक्सिमम जितनी बीमारियों के नाम हम कर सके, उनके मीनिंग्स याद कर सके। जैसे कोविड-19 है तो कोविड-19 ही रहेगा। जैसे और सिंपल बीमारियां हैं, बुखार, नज़ला, जुकाम, तशन्नुज, जिस तरह की बीमारियां हैं, इनके हम मीनिंग जरूर याद करेंगे मैक्सिमम जितना हो सके। और अगर इन द एंड कोई इस तरह की बीमारी आ जाती है जिसका आपको मीनिंग नहीं पता, तो आप वही वर्ड वही इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, उर्दू में। आर्थराइटिस एक कॉमन बीमारी है, ये हड्डियों की कमजोरी की बीमारी होती है, ठीक है, जो कि हमारे बूढ़े लोगों में मोस्टली ज्यादा हो जाती है। आर्थराइटिस, गांठिया, आर्थराइटिस, गांठिया। क्रोनिक डिजीज, मूजी बीमारी या खतरनाक बीमारी या मोहलिक बीमारी, कोई भी वर्ड आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है। क्रोनिक डिजीज, मूजी बीमारी, खतरनाक बीमारी, मोहलिक बीमारी। मोबिलिटी, मूवमेंट से मोबिलिटी। नकलो हरकत, नकलो हरकत, मोबिलिटी। मोबिलिटी, नकलो हरकत। ओके, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज सिंपल वर्ड है, वर्जिश करना, मशक करना। वर्जिश मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड, एक्सरसाइज। वर्जिश, मैनेजेबल,
मैनेज करना होता है इंतजाम करना, मैं इसको मैं मैनेज कर लूंगा, मैं इसका इंतजाम कर लूंगा, ठीक है। या ये चीजें आपको ये चीजें चाहिए, मैं मैनेज कर दूंगा, मैं इसका इंतजाम कर दूंगा, ठीक है। मैनेज, मैनेजेबल, मुनज़्ज़म या इंतजाम, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से यू कैन यूज ईदर ऑफ दीज टू वर्ड्स, मुनज़्ज़म या मैं इसका इंतजाम कर दूंगा। प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के पास जाएं तो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन मिलती है, ठीक है। उस पे क्या लिखा होता है, दवाइयों के नाम ही लिखे होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं दवाओं का पर्चा या पर्ची, ठीक है, दवाओं का पर्चा। प्रिस्क्रिप्शन, दवाओं का पर्चा। रेगुलरली, बाकायदगी से, रेगुलरली, बाकायदगी से। फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल होता है माली, मेरी फाइनेंशियल हेल्प कर दें, या ये ऑर्गेनाइजेशंस लोगों की फाइनेंशियल हेल्प करती हैं तो उनकी माली मदद करती हैं, ठीक है। माली मदद, फाइनेंशियल हेल्प, माली मदद या मावनत, मावनत करना भी मदद करना ही होता है। मैं थोड़े से उर्दू के मुश्किल वर्ड्स इसलिए कुछ बोलती हूँ ताकि, क्योंकि वो समटाइम्स हो सकता है कि वो उर्दू स्पीकर ये वर्ड्स यूज करें, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि उसके क्या मीनिंग है, ठीक है। जैसे माली मुआवनत, जैसे उसने वर्ड यूज किया आज के डायलॉग में तसादुम, और दावा दायर करना मीन्स मेक अ क्लेम, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स उर्दू में भी यूज हो सकते हैं कि उर्दू स्पीकर भी मुश्किल वर्ड यूज कर सकता है। सो वी शुड बी प्रिपेयर फॉर बोथ लैंग्वेजेस वोकैबुलरी। ओके, सो फाइनेंशियल हेल्प, माली मावनत या माली मदद। गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट, सरकार, सरकारी, गवर्नमेंट सपोर्ट, सरकारी अदायगियाँ या सरकारी इमदाद, सरकारी मदद, या हुकूमती, गवर्नमेंट सपोर्ट, हुकूमती मदद, हुकूमती इमदाद, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए दोनों मीनिंग यूज हो सकते हैं, सरकार या हुकूमत। जैसे हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनको हम सरकारी इदारे और गैर सरकारी इदारे उर्दू में बोलते हैं, ठीक है। या हुकूमती इदारे या गैर हुकूमती इदारे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गैर हुकूमती, गवर्नमेंट, हुकूमती, ठीक है। सो दो वर्ड्स हैं, सरकारी, गवर्नमेंट, सरकार या हुकूमत, ओके। सरकारी इदारे या हुकूमती इदारे, गैर सरकारी इदारे या गैर हुकूमती इदारे फॉर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ऑलराइट, ओके। इमिग्रेंट्स या माइग्रेंट्स, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं, सो हम यहाँ पे तारकीन वतन हैं। इमिग्रेंट्स मीन्स तारकीन वतन। रेफ्यूजीज का मतलब होता है मुहाजिर, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। इफ द वर्ड refugee is used in the dialogue, so use, इसका मीनिंग मुहाजिर है, ठीक है। मुहाजिर, मुहाजिर की जमा मुहाजिरीन, प्लूरल इसका मुहाजिरीन। और इमिग्रेंट्स का मीनिंग तारकीन वतन, इमिग्रेंट्स और माइग्रेंट्स तारकीन वतन। ओके, वेटिंग पीरियड, ठीक है। ये भी एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड है, मतलब वेटिंग पीरियड कितना है। ये एप्लीकेशन अगर आप जमा कराएंगे तो इसके रिस्पॉन्स के लिए वेटिंग पीरियड इतना है, ठीक है। तो वेटिंग पीरियड होता है वेटिंग, इंतजार, पीरियड मीन मुद्दत, तो इंतजार की मुद्दत कितनी है, इंतजार की मुद्दत। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज फ्री सर्विसेज। फ्री, जैसा कि हमारा CECA, आई एम गोना अगेन repeat what free services are providing at CECA, ठीक है। तो मैं अब आप उर्दू में इसको बोलूंगी, ठीक है। CECA पे ये सारी फ्री सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। CECA is providing all these services free of cost। CECA पे ये सब सहूलतें मुफ्त फराहम की जाती हैं, ठीक है। फ्री सर्विसेज, मुफ्त सहूलियात। So now let's discuss what are the free services at CECA.
फ्री स्टूडेंट वीजा एक्सटेंशन। वीजा एक्सटेंशन होता है कि वीजे को मजीद उसकी मुद्दत बढ़ाना, वीजे की मुद्दत बढ़ाना, एक्सटेंड करना, बढ़ाना, ठीक है। सो फ्री मुफ्त स्टूडेंट वीजा एक्सटेंशन। चीपेस्ट प्रोफेशनल ईयर ऑप्शंस, प्रोफेशनल ईयर के लिए आपको चीपेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। इससे इसकी इफेक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऑल प्रोफेशनल ईयर्स आर इक्वली इफेक्टेड, लेकिन आपको चीपेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। चीपेस्ट ऑप्शंस कौन कौन से हैं? एट CECA, cheapest student health cover and cheapest options for visitor health cover. फ्री TR 485 वीजा होता है, उसकी एप्लीकेशन आपको फ्री प्रोवाइड की जाएगी, उसकी मुफ्त सहूलत प्रोवाइड की जाएगी या फ्राहम की जाएगी। फ्री PTE and IELTS if you are tutor of naughty classes, and free naughty classes if you are tutor of PTE and IELTS classes। naughty की 4 लैंग्वेजेस में क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें हिंदी, नेपाली, पंजाबी एंड उर्दू शामिल हैं। कैनेडियन इमिग्रेशन, अगर आप यू वांट टू मूव टू द कनाडा, आपको उसके लिए फ्री कंसल्टेंसी है, फ्री एप्लीकेशन है। कॉलेज एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जाएंगी कंसल्टेंसी और फ्री माइग्रेशन कंसल्टेशन। वीजा इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी इशू हो आप CEC से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड की जाएगी। कंसल्टेशन मींस मुशावरत, ठीक है, मतलब आप मशवरा कर सकते हैं उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, मुफ्त सहूलत मुशावरत, ठीक है। ओके, सो दीज आर द सर्विसेज यू कैन गेट फ्री ऑफ कॉस्ट एट CECA। ये तमाम सहूलियात आप CEC पे मुफ्त हासिल कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट वाज द वर्ड जिसके अगेंस्ट मैंने आपको सारी CECA की फ्री सर्विसेज प्रोवाइड की है, सर्विसेज आपको बताई हैं, वो है फ्री सर्विसेज, मुफ्त सहूलियात या मुफ्त खिदमात, ठीक है। सर्विस का मतलब खिदमत भी होता है, तो मुफ्त खिदमात, ठीक है, तो ये खिदमत ही होती है, ठीक है। हम किसी को मुफ्त में किसी को मशवरा दे रहे हैं तो उसकी खिदमत ही कर रहे हैं एक तरह से, या उसको सहूलत दे रहे हैं। तो बोथ वर्ड्स यू कैन यूज। ड्रैग करना, घसीटना, ड्रैग करना, घसीटना, और एक और आज हमने वर्ड डायलॉग में जो किया है, हमें गाड़ी को खींचना पड़ा, ड्रैग करना पड़ा, पुल करना पड़ा, या फिर टो करना पड़ा, गाड़ी की अगर बात हो रही है। ओके, फेंसिंग, फेंसिंग होता है बाड़, होता है घरों के इर्द गिर्द जो फेंसिंग की जाती है उसको बोलते हैं बाड़ लगाना, बाड़ लगाना। ओके, अब कुछ मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड होते हैं, जॉब्स, मुलाजमत, ठीक है, इससे रिलेटिव सारे वर्ड्स मैं बोलूंगी, आप सब लिख लें, उसके मीनिंग भी लिख लें। जॉब्स, मुलाजमत, मुलाजमतें, जॉब्स, मुलाजमतें, फुल टाइम जॉब, कुल वक्ती नौकरी, पार्ट टाइम जॉब, जुज वक्ती नौकरी, कैजुअल जॉब, कभी कभार काम करना, एंड ऑड जॉब्स, मामूली नौकरी करना। समटाइम्स वी यूज टू डू लाइक, जब हम नए नए आते हैं तो हमें कुछ और जॉब्स करनी पड़ती हैं, तो वो मामूली नौकरी। अगेन, जॉब्स मुलाजमतें या नौकरियां, मुलाजमत या नौकरी, जॉब्स फुल टाइम जॉब, कुल वक्ती नौकरी, पार्ट टाइम जॉब, जुज वक्ती नौकरी, कैजुअल जॉब, कभी कभी काम करना, एंड और जॉब्स, मामूली नौकरी करना, ठीक है। ये वर्ड्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कॉमनली यूज होते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं, पूछते हैं हमसे कोई, या किसी भी इन रिगार्ड्स टू एवरी टॉपिक, किसी भी कहीं भी आप मतलब कहीं अगर सेंट्रली कॉल करनी है या कुछ भी करना है, कहीं और किसी इदारे में कॉल करनी है, तो वो पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। आप फुल वक्ती नौकरी करते हैं या जुज वक्ती नौकरी करते हैं या कैजुअल जॉब करते हैं, कभी कभी काम करते हैं, ठीक है। या कोई पर्सन खुद फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में है तो वो कहीं किसी से हेल्प लेने जा सकता है, तो वो बता सकता है कि वो किस स्टेटस पे है, ठीक है। दैट्स व्हाई दीस वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फाइनेंशियल हेल्प का वर्ड मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, माली मुआवनत। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मेरे फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो इतने ज़्यादा नहीं हैं,
ठीक है, मेरी मेरी ज़राए आमदनी के ज़राए कुछ इतने ज़्यादा नहीं हैं, या मेरी आमदनी के वसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं, ठीक है। रिसोर्सेज मीन ज़राए या वसाइल। वसीला, वसीला की जमा है वसाइल। माली वसाइल या माली ज़राए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सोशल वर्कर, सोशल वर्कर समाजी कारकुन, सोशल होता है समाज, ठीक है। तो सोशल वर्कर समाजी कारकुन, ये वर्ड्स भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और उससे रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन से मतलब वो जो काम है वो इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ पे कॉमनली मतलब उनके बारे में जिक्र किया जाता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड टॉपिक, कम्युनिटी इश्यू से रिलेटेड टॉपिक आ सकते हैं। सोशल वर्कर सामाजिक कारकुन, सोशल वर्कर सामाजिक कारकुन। कॉन्टेक्ट, कांटेक्ट करना, राब्ता करना। ओके, एंट्रेंस डोर, एंट्रेंस डोर, डोर तो ऑब्वियसली दरवाजा होता है, डोर दरवाजा, एंट्रेंस दाखिली दरवाजा, ठीक है। ये हमारी एंट्रेंस है, ठीक है, हमारे यहाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एंट्रेंस है, या हमारे एंट्रेंस डोर पे ये पड़ा हुआ है, या ये उसकी निशानी है, ठीक है। तो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज हो सकता है। एंट्रेंस डोर, दाखिली दरवाजा, दाखिल मतलब एंटर, दाखिल होना से दाखिली दरवाजा। प्राइवेट, निजी, ठीक है, प्राइवेट निजी। शॉप, दुकान, प्राइवेट शॉप ये मेरी निजी दुकान है या मेरी जाती दुकान है, ठीक है। निजी प्राइवेट होता है निजी, निजी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का सुना हुआ है ना आपने, जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन निजी इदारे, ठीक है। तो ये किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, प्राइवेट शॉप, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, निजी दुकान, निजी इदारे। ओके, ऑर्गेनाइजेशन इदारा होता है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट का मतलब होता है महकमा उर्दू में, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट्स के नेम अगर आ जाए तो आपने एज इट इज चूज करना है, उसकी कोई इंटरप्रिटेशन कोई उसका ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप उसके मीनिंग सोचेंगे तो जरूर आप पॉजिटिव्स लेंगे और आपकी फ्लुएंसी खराब होगी, ठीक है। उसके बगैर भी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। सो यूज डिपार्टमेंट नेम एज इट इज। डिपार्टमेंट होता है महकमा। पे, तनख्वाह। पोजीशन, या मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरी ये पोजीशन है, ठीक है। क्या पोजीशन है आपकी, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड में से एक है। आपसे भी अक्सर लोग पूछ सकते हैं कि अच्छा जी आप जॉब करते हैं, कौन सी पोजीशन में है, तो कौन सी पोजीशन पे, कौन से रुतबे पे हैं, या आपका कौन सा ओहदा है, ठीक है। पोजीशन, ओहदा। मैं आपको सेंटेंसेस में इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए कि ये किस किस कॉन्टेक्स्ट में वर्ड यूज हो सकता है, ठीक है। सो पोजीशन मीन्स ओहदा। या रुतबा। अच्छा, एक वर्ड और मैं आपको बताती हूँ जो यूज होता है और इसका मीनिंग हमें सोचेंगे तो जरूर खोज लेंगे। ओके, स्पेसिफिकली एक वर्ड है या स्पेसिफिक, ठीक है। स्पेसिफिक होता है कि अच्छा हाँ, मुझे स्पेसिफिकली इस चीज के बारे में बताएं, ठीक है, मतलब खास तौर पे मुझे इस चीज के बारे में बताएं, ठीक है। या कैन यू बी प्लीज मोर स्पेसिफिक अबाउट दिस, ठीक है। तो क्या आप इस चीज के बारे में थोड़ा और महसूस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से आपको ये दोनों मीनिंग आने चाहिए। स्पेसिफिकली खास तौर पे, स्पेसिफिकली स्पेसिफिक, खास तौर पे, खास तौर पे। और दूसरा वर्ड इसका महसूस, ठीक है। कैन यू बी प्लीज मोर स्पेसिफिक टुवर्ड्स इट, क्या आप इस चीज के बारे में ज्यादा महसूस हो सकते हैं, ठीक है। या खास तौर पर मुझे सिर्फ इस चीज के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो आपने अपने कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से ये वर्ड यूज करने हैं, ठीक है। स्पेसिफिक, महसूस या खास तौर पर। फिजिकली, फिजिकली होता है हमारा जिस्मानी तौर पे, ठीक है। अगर तुम एक्सरसाइज करोगे तो फिजिकली फिट रहोगे, अगर तुम वर्जिश करोगे तो जिस्मानी तौर पर फिट रहोगे,
मतलब तंदुरुस्त रहोगे या चुस्त रहोगे या एक्टिव रहोगे। एक्टिव का मतलब होता है चुस्त। फिजिकली फिट मतलब जिस्मानी तौर पर चुस्त। physically active, physically fit, whatever the word comes in the dialogue, you can use this meaning. जिस्मानी तौर पर सेहतमंद या जिस्मानी तौर पर चुस्त होना। Okay. encourage करना, हौसला अफजाई करना। You are good in this game, I encourage you to play continuously। ठीक है, तो मैं तुम्हें भाई हौसला अफजाई करता हूँ कि तुम इसको खेलना अपना मामूल बनाओ। हौसला अफजाई करना, किसी को इंकरेज करना, शाबाश देना। ठीक है, rely on their own means, rely on their own means, rely होता है इन्हिसार करना, rely इन्हिसार करना, means या रिसोर्सेज, इनका मतलब रिसोर्सेज हमने पहले भी वर्ड डिस्कस कर लिया, वसाइल या जराए। ठीक है, तो मीन्स का मतलब भी यही होता है, जराए या वसाइल। क्या मीनिंग हो गया रिलाई ऑन देयर ओन मीन्स? अपने वसाइल पर इन्हिसार करना, अपने जराए पर इन्हिसार करना या अपने वसाइल पर इन्हिसार करना। ठीक है, तो इसका वर्ड मैंने कलेक्टिवली इसलिए यूज किया, इकट्ठा इसी तरह ही यूज होता है अगर आएगा ये डायलॉग में। रिलाई ऑन देयर ओन मीन्स, अपने जराए पर इन्हिसार करना। फाइनेंशियल हार्डशिप्स, अच्छा हमने तीन वर्ड यूज कर लिए हैं, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल हार्डशिप्स। फाइनेंशियल हेल्प का मीनिंग था माली मदद या माली मावनत। फाइनेंशियल रिसोर्सेज मीन माली वसाइल या माली जराए। एंड फाइनेंशियल हार्डशिप्स मीन्स माली मुश्किलात। हार्डशिप्स होता है ना मुश्किलात, सो फाइनेंशियल हार्डशिप्स माली मुश्किलात। तो इनके मीनिंग जरूर आप अपने फिंगर टिप्स पे रखें, किसी भी कॉन्टेक्स्ट पे कहीं भी कोई भी वर्ड आ सकता है तो आपको पता होना चाहिए क्या उसका मतलब। माली मुश्किलात। ओके, मोर इम्पोर्टेंट वर्ड असेसमेंट, जांच करना, जांचना, पता लगाना। ठीक है, असेसमेंट, जांचना, असेसमेंट, जांचना, जांच करना। प्रिवेंट, प्रिवेंट बचाना, महफूज रखना किसी चीज को। ठीक है, तो प्रिवेंट बचाना या बचना, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यूज होगा। बचाना, बचना, महफूज रहना। मिसहैप्स, मेरे साथ ये मिसहैप हो गया। ठीक है, तो मेरे साथ ये हादसा हो गया। मिसहैप्स हादसात, हादसा सिंगल, हादसात प्लूरल ऐसे, हादसात। और एक और वर्ड है काउंसलिंग। ठीक है, यहाँ कम्युनिटी वर्कर, सोशल वर्कर का काम बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, तो इससे रिलेटेड टॉपिक भी आ सकता है और इससे रिलेटेड वोकैबुलरी भी इम्पोर्टेंट है। तो काउंसलिंग इज रहनुमाई करना, काउंसलर रहनुमाई करने वाला। ठीक है, काउंसलिंग। सर आपको डॉक्टर्स भी मशवरा दे सकते हैं कि आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, आपको रहनुमाई के लिए जाना चाहिए या आपको मशवरे के लिए जाना चाहिए। ठीक है, सो काउंसलिंग इज रहनुमाई करना। Okay guys, we have discussed this the first page of our vocabulary। मैंने आपको इसलिए ये सारी vocabulary लिस्ट की है कि अगर आप उर्दू को रीड नहीं कर सकते तो आप अपने इंग्लिश के नोट्स बना लें, इंग्लिश की vocabulary लिस्ट बना लें। एट द एंड ऑफ योर नोटबुक देयर शुड बी अ vocabulary लिस्ट फॉर यू, जिसको आप रोजाना की बेसिस पे रिवाइज कर सकें। ठीक है, और एग्जाम से पहले भी ऑब्वियसली। फिर उस vocabulary को डायलॉग्स में यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसको ऐसे ही रट्टा मारना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बात आपकी वोकैबुलरी के याद करने की तब आपके काम आएगी जब आपको पता होगा कि डायलॉग्स में अब आपको ऑन स्पॉट ये आप वोकैबुलरी यूज कर सकते हैं बिना सोचे। ठीक है, बिना सोचे इसलिए कह रही हूँ, जब भी आप सोचेंगे तब पॉज लेंगे और पॉज लेने से आपकी फ्लुएंसी इफेक्ट होगी और इसके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, so this
दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। आज हमने डिस्कस किया इंश्योरेंस को, इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी वोकेबलरी को, इंश्योरेंस से रिलेटेड हमने डायलॉग किया। उसके बाद हमने जनरल वोकेबलरी का पेज नंबर 12 हमने डिस्कस किया और उसको मैंने आपसे नोट्स बनवाए हैं ताकि आप लोग उसको अपनी रोमन इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो लिख लें। ठीक है, बोलती भी इसलिए हूँ क्लास में, पढ़ाती भी इसलिए हूँ ताकि आपको अगर कोई वर्ड जिसका मीनिंग आपको लगे कि मुश्किल है तो आप इस तरह भी साथ साथ डिस्कस करने से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कम विद अनदर टॉपिक, कोई और टॉपिक हम उसको डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड वोकैबुलरी करेंगे, उससे रिलेटेड डायलॉग करेंगे और हम रोटेट भी करते जाएंगे। हम हो सकता है सेम टॉपिक पे फिर दोबारा डायलॉग कर लें। ठीक है, सो दैट द मैक्सिमम प्रैक्टिस यू कैन गेट। ठीक है, ये वोकैबुलरी लर्न करें। उर्दू बुलेटिन मैंने कहा है कि वो ज़रूर एक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दिन में कम से कम 2 दफ़ा एक न्यूज़ बुलेटिन सुन लें। ये 5-10 मिनट का बुलेटिन होता है और उसके आप वर्ड्स नोट कर लें, उसकी लिस्ट बनाएं। ठीक है, हमारे उर्दू न्यूज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे वर्ड्स यूज़ होते हैं उर्दू वोकैबुलरी के, इससे डेफिनेटली आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तीसरी चीज़ है CCL की एक वेबसाइट ऐप है जो आपने डाउनलोड करनी है। CCL ट्यूटोरियल्स के नाम से, CCL ट्यूटोरियल्स इसके नाम से एक ऐप है, वो डाउनलोड करें और उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा अराउंड 12-13 डायलॉग्स उसमें दिए हुए हैं। ठीक है, वो आप प्रैक्टिस करें और उन डायलॉग्स के एंड पे सैम्पल आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो आप अपने आंसर को और सैम्पल आंसर्स को ज़रूर कंपेयर करें और आपके पास चॉइस होती है कि आप अपना डायलॉग्स जो आपने जवाब दिया है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी रिकॉर्डिंग को दोबारा खुद से सुने तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स की हैं और कितने पॉजेस किए हैं। ठीक है, किस तरह आपकी फ्लुएंसी इफेक्ट हो सकती है। ठीक है, पॉजेस को जरूर कंसिडर करें कि आप मजीद बेहतर आंसर और किस तरह दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपने की तीसरी चीज, CCL ट्यूटोरियल्स की वेबसाइट ऐप को डाउनलोड करके एक डायलॉग मिनिमम जरूर आप प्रैक्टिस किया करें एवरी डे, वोकैबुलरीज याद करें और उसको अच्छा उस ऐप में भी टॉपिक वाइज वोकैबुलरी दी हुई है, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, वो वोकैबुलरी भी आप याद कर सकते हैं ऑन डेली बेसिस। ओके, तो इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो डू कम इन द क्लास, वी कैन डिस्कस, वी कैन प्रैक्टिस। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी अपनी प्रैक्टिस। ठीक है, आप खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे सिर्फ सुन के आपकी तैयारी नहीं हो सकती। ठीक है, सो टू ज्वाइन द क्लासेस, प्लीज क्लासेस नाटी सी आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, नॉट ओनली द क्लासेस फॉर नाटी उर्दू, आपको और भी बहुत ज़्यादा फ्री सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं एट CECA। आपके पास कोई भी वीज़ा इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी इशू हो, डू कम एट CECA, आप अपनी सिचुएशन को डिस्कस करें, मुश्किलात को हल करें। ठीक है, so what are the other services which are provided by the CECA? मैं gonna repeat it again. Free student visa extension, cheapest professional year options, cheapest student health cover and visitor health cover options, free TR visa application for 485, free PT and IELTS if you are tutor of Nati classes, and free Nati classes in 4 languages: Hindi, Nepali, Punjabi, and Urdu. All free Nati classes, and if you are tutor of PT and IELTS as well, you can join these PT classes, free Nati classes. Free Canadian immigration assessment. Do come if you want to move to Canada. आप अपनी assessment करवा सकते हैं, skill assessment, whatever. And college admissions, free migration consultation, and you can consult what is the best course for you, which can lead you towards your PR. Okay, so always आप अपना चॉइसेस डिस्कस किया करें। ठीक है, आप CEC पे आए, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, तो आप जरूर कंसल्ट करें बिफोर टेकिंग एनी इनिशिएटिव, एनी बिग स्टेप। आप अपना एक दफ़ा ज़रूर अपना प्रोफाइल कंसल्ट करें एट CECA एट फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक विद योर प्रिपरेशंस एंड अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। कोई भी क्वेश्चन हो, you can leave any message for me and you can come in the class on every Sunday 11 to 1. नाटी उर्दू क्लास होती है 11 से 1 बजे हर इतवार को। So please come in the class and you can practice yourself. ठीक है, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
Okay guys, best of luck and see you in next class. Bye bye.